Today we have the second All India Muslim Women Convention. It is an honor to introduce a distinguished leader who has significantly contributed to the empowerment of marginalized communities in India, especially the Muslim community. Janab Salman Khurshid Sahab, a senior advocate, a seasoned politician, he has held key ministerial positions including external affairs, law and justice, minority affairs. His tireless advocacy for the Right to Education Act in 2009 ensured inclusive education for all children, particularly benefiting underprivileged Muslim children. He played a crucial role in proposing the National Judicial Appointments Commission, aiming to enhance transparency in judicial appointments. His support to the National Food Security Act aimed at eradicating hunger among the poor. As an author and as a former member of the parliament, his work extends beyond politics to legal reforms, enhancing corporate governance and protecting whistleblowers. Mr. Khurshid's efforts have consistently focused on justice, equality, upliftment of minority communities, making him a beacon of hope and change. So I request the audience to please join me in welcoming Ms. Janab Salman Khurshid Sahab, and we would request Khurshid Sahab to please enlighten the audience with your experiences and your message. Khurshid Sahab, this is our second Women's Convention of All India Muslim Women Association, and we have delegates from over 15 states of India. I am told that 60 delegates have traveled across India from Kerala, from West Bengal, from Assam, from Maharashtra, Jaipur, Rajasthan, to be a part of this women's convention. The theme of the convention is Champions of Change. They are the social contributors to bring about a change in the society. Khurshid Sahab, we would love to listen to you. Jazakallah. अस्सलाम वालेकुम। मैं मशकूर ममनून हूँ कि आप लोगों ने मुझे आज यहाँ आने की दावत दी है, और ममदुआ आपा ने जो तहरीक चला रखी है और जिस तहरीक का आप लोग सब हिस्सा हैं, और जिसके लिए आप लोग यहाँ आज जिस तहरीक को और आगे बढ़ाने के लिए आप लोग यहाँ मौजूद हैं, और जगह जगह से पूरे हिंदुस्तान से बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत कम हिंदुस्तान में ऐसी तहरीकें होंगी जैसी कि आपकी तहरीक है, और बहुत कम लोग ऐसा काम कर पाते होंगे जो आप करना चाहते हैं। तो आपको तहे दिल से मेरी मुबारकबाद है। माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। If you are comfortable in Urdu, then I will speak in Urdu. If you want me to speak a little bit in Urdu, a little bit in English, then I will. उर्दू कहीं कहीं पर मैं अंग्रेजी में कुछ कह दिया करूं ताकि एक लिंक रहे। और वैसे भी जो चेंज की आज हमारे मुल्क में और हमारे समाज में जो चेंज की एक कोशिश है, जस्तजू है चेंज की और तब्दीली की, उसमें अंग्रेज़ी का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। हमें अपनी ज़बान पर, हमें मादरे वतन पर फ़ख्र है। ज़बान का इस्तेमाल करना और ज़बान से वाबस्ता रहना हम लोगों के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि हम ज़बान से, हमारे बच्चे ज़बान से भी दूर हो जाते हैं। और सच्ची बात यह है कि ज़बान से दूर होकर इतना कुछ सरमाया वो खो बैठते हैं कि उनको ज़िंदगी में बहुत बाद में ये एहसास होता है कि हमने अगर अपनी माँ की गोद में ज़बान सीख ली होती और उस ज़बान को हम आगे लेकर चले होते तो यकीनन हमें दुनिया का सबसे बड़ा सरमाया जो है वो हासिल रहता। और जो हमारे स्कॉलर्स रहे हैं, जो उर्दू ज़बान से जुड़े हुए शायर रहे हैं, फ़िलोसोफर्स रहे हैं दुनिया भर में, लेकिन ख़ास तौर पे जो हिंदुस्तान में रहे हैं, उनकी बात अगर हमको समझ में आ जाए और उनका दिया हुआ फ़लसफ़ा हमारे लिए एक सहारा बन जाए तो यकीनन हमें बड़ी क़ुव्वत मिलेगी। पर इसी के साथ अपने में एक जी शुक्रिया, अपने में एक तब्दीली लाना और अपने समाज में, अपने घरों में
अपने काम में सब जगह पर तब्दीली लाना ये एक तकाजा है जो ये कहें कि जदीद हमारे ज़माने का एक तकाजा है, मॉडर्न इंडिया का, मॉडर्न वर्ल्ड का जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं। और अभी तक हम ये समझते थे अंग्रेज़ी सीख लेना और अंग्रेज़ी में कुछ बात कर लेना और कंप्यूटर पर थोड़ा सा काम सीख लेना और कर लेना, वही सिर्फ है। आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आया है। हमको अब काबू में लेना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए वो कर देती है जिसका हमें तसव्वुर भी नहीं, जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं, और उसकी क़ुव्वत और उसकी ताकत अगर हम इस्तेमाल कर लें तो दुनिया में कहाँ कहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, दुनिया से दूर भी हम कहाँ कहाँ पहुँच सकते हैं, इसका आज हम सबको अंदाज़ा नहीं। हम में से जो लोग साइंस के तालिब इल्म रहे हैं और जिन्हें मैथमेटिक्स, फिज़िक्स और कंप्यूटर से ताल्लुक़ रहा है, उनको भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या क्या कुछ मिल सकता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अगर ताल्लुक़ ना हो और उसको समझ ना पाएँ तो कितने महरूम रह जाएंगे हम ज़िंदगी में, इसका भी पूरी तरह से एहसास अभी नहीं है। पर एनी हाउ आप लोग जो काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि एक बहुत उम्दा काम है, उसमें मैं सिर्फ कुछ बातें कहना चाहता हूँ जिस पर यकीनन आप और हम गौर करेंगे तो हम लोगों की आगे की ज़िंदगी में बहुत कामयाबी और आसानी उनको मिलेगी, ऐसा मेरा ख्याल है। हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में जमहूरियत है, सब लोगों का बराबर का हक़ है, और हमारी एक गंगा जमनी तहजीब, हमारी मिली जुली एक साझी विरासत जो हमें मिली है, हमारे बुज़ुर्गों से मिली है। इस मुल्क में बहुत आलीशान लोग गुजरे हैं, उनका जिक्र हम करें तो हफ्तों लग जाएंगे जिक्र करते हुए कि कैसे कैसे लोग यहाँ गुजरे हैं, जिनका इस्लाम से ताल्लुक़ रहा, जिनका मज़हब से ताल्लुक़ रहा, जिनका सियासत से ताल्लुक़ रहा, जिन्होंने कौम की खिदमत में क्या कुछ नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद या तो लोग गलतफहमी का शिकार हैं या जानबूझकर गलतफहमी पैदा करना चाहते हैं, अपने लिए भी और लोगों के लिए भी। और वो मसला ये है कि आखिर हमारे ताल्लुक़ से लोग गलतफहमी क्यों पैदा करते हैं। क्या बात है कि इस्लाम जो सच्चा इस्लाम है, जो सदाकत से इस्लाम समझता है, उसके लिए इस्लाम की तस्वीर बहुत मुख्तलिफ है, और जो लोग इस्लाम का बयान करते हैं और उसमें हम लोग भी कभी कभी धोखा खा जाते हैं। हम ईमान पर पाबंद लोग भी उसमें धोखा खा जाते हैं क्योंकि हमारी मालूमात कम है या हमने उस पर गौर नहीं किया है। तो एक तस्वीर इस्लाम की पेश की जाती है, क्योंकि यहाँ ख़वातीन हैं, इसलिए मैं इस बात का जिक्र ज़रूर कर दूँ कि ख़वातीन के ताल्लुक़ से तस्वीर इस्लाम की ऐसी पेश की जाती है कि जैसे हम इस्लाम के लोग, हम लोग ईमान वाले लोग जो हैं, अपने घर के औरतों पर, अपने समाज की ख़वातीन पर जुल्म करते हैं, आपको अपने से कम समझते हैं, आपको अपने से कम मानते हैं, और इसलिए आपको आपका हक़ नहीं देते हैं। एक तसव्वुर ये इस्लाम के बारे में आया है, लेकिन ये तसव्वुर इस्लाम का नहीं है, ये एक बिगड़ी हुई तस्वीर इस्लाम की है। और वो बिगड़ कैसे गई उसमें रिसर्च की जा सकती है, उसमें बहुत गहराई तक जाकर ये कहा जा सकता है कि इस्लाम जब हिंदुस्तान में आया, जब वो हमारे सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम आया, तो बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन लेकर आया। और जब लोग इसका जिक्र करते हैं तो वो कहते हैं कि देखिए आर्किटेक्चर देखिए, हमारा रहन सहन देखिए, हमारा खान पान देखिए, वो सब कहाँ से आया, कभी ईरान से आया तो कहीं तुर्की से आया तो कहीं इराक से आया, अफगानिस्तान से आया। किस हमारे मुल्क के किस हिस्से में कहाँ का ज़्यादा असर है, इस पर आप गौर कर सकते हैं। हैदराबाद में कहाँ का असर है, हमारे उत्तर प्रदेश में कहाँ का असर है, इस पर आप लोग गौर कर सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे कॉम्पोजिट कल्चर को, हिंदुस्तान के, हमारे मुल्क के कॉम्पोजिट कल्चर को इस्लाम का रहा है। अब बदकिस्मती हमारी ये देखिए कि हमारे कंट्रीब्यूशन को किसी वजह से, और सच्चाई ये है कि वो वजह ये थी कि उसमें जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुआ, वहाँ की यहाँ लाई हुई तहजीब का
यहाँ मौजूदा तहजीब के साथ, तो एक कोई ऐसी शक्ल निकल के आई जिस शक्ल को एक तरफ से तो हमने नुमाया किया और हमने जिसकी तारीफ की और जिसको हमने बहुत बेहतर समझा, जिसे हम साजी हिंदुस्तान की इंडो इस्लामिक कल्चर जिसे हम कहते हैं, और उसकी पेशकश हमने दुनिया के सामने करी। लेकिन एक और पहलू उसका था जिसने बहुत गलतफहमियां पैदा करी और जिसका मैंने अभी जिक्र किया, कि जिसने ये बताया कि इस्लाम ने बहुत इस किस्म के तौर तरीके यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए जो यहाँ के तौर तरीक़ों से बदतर थे, बेहतर नहीं थे, बदतर थे। बहुत सारी चीज़ें आई उसमें। अब समझ जाए कोई कि इस्लाम का मकसद क्या है। छोटी सी बात है, 2 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में ये फैसले हुए हैं। अभी भी बम्बई हाई कोर्ट से ये फैसला आया है कि जहाँ किसी स्कूल में, कॉलेज में यूनिफॉर्म होता है तो उस यूनिफॉर्म में अगर हिजाब पहनने की इजाज़त नहीं होती तो उसमें लोग ज़ाहिर है शिकायत करते हैं कि हमको हिजाब पहनने की क्यों नहीं इजाज़त मिलती है। और उसका जवाब सीधा सीधा ये दिया जाता है कि सब लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं तो आप भी यूनिफॉर्म पहनिए, आप क्यों हिजाब पहनेंगे, आपके लिए अलग से क्यों एक निज़ाम बनाया जाए। जबकि हमारे अपने आईन में, कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से निज़ाम और मज़हबों के लिए बनाया गया है। एक अलग से निज़ाम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि सिख मज़हब के लिए अलग से निज़ाम हर जगह बनाया जाएगा और बनाने का उसमें प्रोविज़न है। तो अगर आप कड़ा पहनना चाहते हैं, अगर आप पगड़ी पहनना चाहते हैं तो उसका हक आपको कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। लेकिन अगर हम अपने मज़हब से या अपने कल्चर से, मान लीजिए कल्चर से जुड़ी हुई बात करते हैं, तो हमसे ये कहा जाता है कि आप अलगाववादी हैं, आप दुनिया से अलग रहना चाहते हैं, आप यहाँ की जो मुश्तरक वो है, यहाँ की का कल्चर है, उससे अलग होकर अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं। ये बदकिस्मती की बात है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक फ़ैसला दिया था, बड़ा अच्छा फ़ैसला था, उसके बावजूद अभी भी हाई कोर्ट्स वगैरह में गलतफहमी पैदा होती है। अब हम इस्लाम की सही तस्वीर दुनिया को दिखा सकें, अपने बिरादरान वतन को समझा सकें, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक चुनौती है, हमारे लिए एक बहुत चैलेंज। लेकिन ये कैसे होगा अगर हम अपने मज़हब को सही पहलू, अपने मज़हब की सही नौइयत अगर हम खुद समझ जाएंगे तभी हम किसी और को समझा पाएंगे। कोई टीचर नहीं बन सकता अगर वो खुद अपने सबक को सही समझता है, अगर वो अपनी किताब को सही नहीं समझता है, वो बच्चे को क्या पढ़ाएगा। हम अपने तौर तरीक़े से लोगों पर असर डाल सकते हैं, हम उनसे तफसीली गुफ्तगू करके उन पर असर डाल सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। और मैं मानता हूँ कि अगर दुनिया में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं दुनिया में जहाँ पर जो लोग दूसरे मज़हबों से जुड़े रहे, उन मज़हबों से अलग हटकर वो इस्लाम कबूल जाते हैं और इस्लाम को एब्सॉर्ब कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो जहाँ इस्लाम के लोग रहते हैं वो अपनी बात को ठीक तरह से ना कह पाएँ, वो बड़ी अफसोस की बात है। तो इस्लाम ख़वातीन को आगे बढ़ाने की अलग से बात कहने की ज़रूरत इसलिए नहीं कि इस्लाम की हिस्ट्री में ख़वातीन को एक बहुत अहम जगह दी गई है। हज़रत साहब की अपनी ज़िंदगी में, उनके अपने ख़ानदान में जो इम्पोर्टेंस दी गई, जो ख़वातीन को इम्पोर्टेंस दी गई, चाहे वो उनसे उनकी अहलियाँ हों या वो उनकी बच्चियाँ हों, उनको क्या अहमियत दी गई वो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। तब भी हम बहुत बड़ी गलती करते हैं अगर हम अपनी प्राइवेट लाइफ में, अपनी निजी ज़िंदगी में हम आपको वो जगह और वो मकाम नहीं दे पाते जो हमको सीखना चाहिए। इस्लाम की हिस्ट्री से, इस्लाम की तारीख से हमको सीखना चाहिए। तो इसको, चैलेंज को हम लोग कैसे निभाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर गौर करने की ज़रूरत है। इस पे जो हमारे समाज के, हमारे मज़हब के जो रहनुमा हैं उनसे गुफ्तगू करने की बात है। और मेरी इल्तिजा उन लोगों से सबसे ये है कि आप ये मत समझिए कि ना समझ हैं वो नहीं समझेंगे। हमारा जमहूरी निज़ाम में, जमहूरियत में हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम हर एक को समझाएं,
ہمیں اپنے پر یہ فخر ہونا چاہیے کہ ہمارا مذہب بہت اچھا مذہب ہے جس میں کوئی کمی نہیں ہے. ہمارا ایک مکمل مذہب ہے جس میں کوئی کمی نہیں ہے. کمی ہے تو ہم پہلے سمجھیں کہ وہ کمی کیوں اس پر سونپ دی گئی ہے, کیوں اس پر بوجھ بنا دیا گیا ہے, اور اس کو دور کریں. ریفارم کوئی اور آ کر کرے اور ہمیں بتائے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے تجربے کو اور اپنے ہی احساس کو لے کر اپنے میں ریفارم کریں, اپنے آپ کو بہتر کریں اور اپنے آپ کو بہتر کر کے دنیا کو دکھائیں کہ ہمارا یہ ماڈل ہے, یہ ہمارا ایک نشاندہی ہے اس بات کی کہ ہم کیا بننا چاہتے ہیں, ہماری جڑیں کہاں پر ہیں, کیا ہماری زندگی کی حقیقت ہے. تو آپ ضرور اچھے کام کر رہے ہیں اور اس کا میں سمجھ رہا ہوں جن لوگوں نے محنت کی ہے اور اچھا کام کیا ہے ان کو آج ہم یہاں انعامات پیش کریں گے اور ان کو ریکگنائز کریں گے. لیکن پہلو یہ پیچھے رہنا چاہیے کیونکہ آج ہماری زندگی کا, ہماری قومی زندگی کا یہ سب سے بڑا سوال ہے. کچھ لوگ جان بوجھ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم میں کمی ہے اور ہم میں تبدیلی آنی چاہیے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ زبردستی آپ اپنی سوچ اور اپنے تاثرات جو ہیں وہ خواتین پر ایک بوجھ بنا کر ڈالتے ہیں اور خواتین کو موقع نہیں دیتے کہ وہ کہہ سکیں کہ نہیں ہماری انڈرسٹینڈنگ اسلام کی کچھ اور ہے. ایسا کوئی نہیں ملا جو یہ کہے کہ ہم اسلام سے الگ ہونا چاہتے ہیں, ایسا تو کوئی نہیں ملا. ایسے ضرور ملے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ہم کو ریفارم چاہیے, جو سماجی یہاں پر نظام ہے اس میں ہمیں ریفارم چاہیے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم کو اسلام میں ریفارم چاہیے, اس لیے کہ جو اسلام سمجھتا ہے صحیح اسلام کو, کہ جس کو تربیت ہے ملی ہے اور جس کو تعلیم ملی ہے صحیح اسلام کی, وہ یہ جانتا ہے کہ ایمان سب سے بڑی چیز ہے. جو ایمان لاتا ہے وہ ایمان لانے کے بعد پھر یہ سوال نہیں کرتا کہ آپ خدا ہیں تو آپ کیسے ہیں, آپ کیوں ہیں. وہ ایمان ہی وہاں پر ایک آخر کا قدم ہوا کرتا ہے. تو ایمان اور ریشنالٹی کا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں, ایسا صحیح نہیں ہے. اگر اسلام کی اسٹڈی بہت گہرائی سے کی جائے تو ریشنالٹی ہر جگہ ملے گی, ہر جگہ دکھے گی. لیکن بدلتے وقت کے ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے, اس کو کس طرح سے اور کس پہلو سے سمجھنا ہے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہماری زندگی میں آتا ہے. ہمارے رہنما ہم کو راستہ دکھا دیں تو ہم یقیناً ان کے شکر گزار ہوں گے. لیکن یہ بھی ہے کہ توحید ہے تو ہمارے لیے ایک یہ بھی موقع ہم کو دیا گیا ہے کہ ہم عقل اپنی استعمال کریں اور اس سے سنسیئرلی اور اپنے سچائی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اتنی بڑی امانت ہم کو دی گئی ہے اور اس پر ہم کو کیسے چلنا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کا یہ جو گنگا جمنی تہذیب کا کام ہے کہ ایک طرف آپ سوشل ریفارم میں, سوشل ڈیولپمنٹ میں, ایجوکیشن میں آپ اور جو بھی امپورٹنٹ اس طرح کے فیکٹرز ہیں ان میں کام کر رہی ہیں, تو دوسری طرف یقیناً آپ کا لگاؤ اور آپ کا ایمان جو ہے وہ آپ کو وہاں پابند رکھتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ ماڈرن کام کرنے میں آپ کو اسلام کو ترک کرنا ہوگا یا اسلام کو سے الگ ہونا پڑے گا. آپ ہی لوگ یہ بتائیں گے اور دکھائیں گے کہ ماڈرنزم کو بھی اسلام کا سہارا چاہیے اور اسلام ہی ماڈرنزم کا ایک مقصد ہے اور اسلام ہی ماڈرنزم بتاتا ہے, دکھاتا ہے. بس میں انہیں الفاظ کے ساتھ ایک بار پھر مشکور ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا. اور حالانکہ میں نے ممدوحہ جی سے یہ کہا تھا کہ مجھے مبتلا ہوں, میں ایک ایسے معاملے میں مبتلا ہوں جو یہاں آ کر بہت زیادہ وقت دوں گا تو لوگ شکایت کریں گے دیکھیے وہ اپنے فلسفہ سنانے کے لیے کہیں پہنچ گئے ہیں, ہماری طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں. تو یقیناً ان کو بھی توجہ دینی ہے. میں آپ سے جلد اجازت چاہوں گا, لیکن جو مجھے یہاں ذمہ داری سونپی گئی ہے اس کو پورا کر کے جاؤں گا. بہت بہت شکریہ.